Hello everyone. I, Dr. Seema Tandon, Deputy Director RRTC UPTSU, welcome and thank Dr. Vani for taking out time to take a session on anemia. Over to you, Dr. Vani. Though the definition of anemia in women is 12 gram percent, 12 milligram, 12 gram percent, the definition, the cutoff value for anemia in pregnancy has been set a little lower because of consideration for physiological hemodilution. So, because of that, the cutoff value where we consider below is 11% because of physiological hemodilution. From in non-pregnant state, hemoglobin is 12, which is considered normal. So, in pregnant women, it is considered to be 11 gram percent. And then further, it has been classified into mild, moderate, severe degrees based on the hemoglobin values. So, mild anemia, we can see in the slide, less than 11 is anemia, less than 7 is severe anemia. So, somewhere between 7 and 11 lie the moderate and the mild values. Mild anemia is anything less than 11, so that makes it 10.9. So, mild is really mild and small. It is from 10 to 10.9. And we already know the cutoff value for severe is 7. So less than 11 and then less than 7. Less than 7 is severe and less than 7 lie the moderate and mild. Mild is very small, 10 to 10.9, and remaining rest of the part is moderate anemia, that is from 9.9 to 7. See, you can see here. See, read only the I'm just telling you the pregnant woman's value. Anything 10 to 10.9 is mild, 7 to 9.9 is moderate, and less than 7. So don't just try to remember less than 11 and less than 7, and then mild and moderate वो कहाँ पर आते हैं? See, this is a slide which is showing what happens in anemia, and it is showing that there are scant RBCs. So this is going to happen, when there is anemia due to heavy blood loss. And when there is anemia due to iron deficiency, there is hemoglobin that is less. Although the synthesis will also be less, these RBCs will become paler. हल्के लाल रंग के हो जाएंगे. They will become PALE, pale. So this is one of acute blood loss. And with chronic blood loss, the number will be less, as well as the color of the RBCs will become will become lighter. Now, the causes of anemia, we all have been knowing that India facing a tropical country, so it is facing problems of all kind of parasitic infections, and developing country. So poor socioeconomic status, nutritional status is not up to the mark. So because of this, our nation is facing problems of anemia. So low socioeconomic status leads to poor nutritional, poor diet. Sometimes educational status may not be, they are well educated, but they are not knowing, lack of knowledge. Although they go in hand, knowledge as well as socioeconomic status go together. But sometimes, in spite of knowing also, people, even those who are educated, may go into wrong dietary habits that they are facing problems like anemia. Then people who are poor, living in villages, in older times, they used to walk barefoot. Infestation with hookworm used to cause chronic bleeding. Infections with malaria, chronic malaria causes lysis of the RBCs. So there is again blood loss. So it leads to anemia. Then there are, so this iron deficiency, vitamin A deficiency, multiple vitamin B deficiencies, among which folic acid is very important in pregnancy. All these lead to anemia.
anemia due to infections, and anemia due to each of them somewhat. See, anemia due to infections may be any infection, chronic infection, like that of malaria. Malaria will cause hemoglobin deficiency not only by virtue of causing uh, hemolysis, but as well as any infection, malaria, chronic infection, malaria, TB, or for that matter, pyelonephritis, any chronic infections, they also suppress hematopoiesis from the bone marrow. So, and in anemia, there is, uh, symptoms may be there even at slightly higher values. The hemoglobin may not be that low, but patients will have symptoms of anemia because of oxygen delivery capacity of the hemoglobin is affected. Hemoglobin, when it goes to periphery, is supposed to dissociate from its oxygen to get it delivered to the peripheral organs. But in cases of anemia, this hemoglobin binds very avidly, very firmly with the oxygen. It doesn't let the oxygen leave at the peripheral tissues in infections. So even though hemoglobin is not less, oxygen delivery is affected. So this might be the cause of anemia-like features, though the hemoglobin may not be low in infections. And that is why in infections, the threshold for blood transfusion should be a little low. हम ऐसा ना सोचे कि 7 पे ही करेंगे. अगर 8-9 हीमोग्लोबिन है और उससे सेप्सिस है, तब भी ब्लड देने पे उसमें इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसकी डिलीवरिंग कैपेसिटी हैम्पर हो रही है इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है. आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल. Chronic renal disease, any disease affecting, that erythropoietin is a hormone that is released from kidneys. So whenever there is any major disease of the kidneys, a chronic disease, the erythropoietin production is hampered. Then is among all these vitamins are important in hematopoiesis. Are all are acting at some or the other step. You must have read small cell, progenitor cell. There are so many cells that finally led to completion of the process of erythropoiesis. Folic acid is really important. Folic acid is important for the division of cells, and its deficiency leads to variety of types of anemias and maternal consequences. Like a deficiency of folic acid, you all know, leads to not only leads to anemia, it also causes neural tube defects. It also causes hypertension by causing hyperhomocystinemia. आपने hyperhomocysteine बहुत सारे MRs वगैरह दवा बता रहे होंगे. तो फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड B6, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हाइपर होमोसिस्टिनीमिया दूर होता है, और इसकी कमी से हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और प्लेसेंटल एब्रप्शन तक हो जाता है. फोलिक एसिड की कमी से एबॉर्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन में काम करता है. अगर ये कम होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी ठीक से, जिससे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी और एबॉर्शंस हो जाएंगे. इतनी इंपॉर्टेंस है फोलिक एसिड. So, apart from these general causes of anemia, pregnancy predisposes to anemia because, although, you know, because there is more volume expansion, so there is dilutional anemia. So you must be thinking कि hemoglobin तो उतना ही है, but you know, the thing is that more RBCs are required to meet the demands of pregnancy. तो होता क्या है कि आरबीसी खाली 20% बढ़े और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया 50%, तो नेट क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कमी आएगा, रिलेटिवली हीमोडाइल्यूशन ही रहेगा. तो इसीलिए प्रेगनेंसी में अनीमिया तो होना ही है. ये फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ अनीमिया मैंने आपको बताया है. प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इज मोर देन द आरबीसी वॉल्यूम expansion. So leave apart physiological anemia. If additional iron is not added in the developing world, all women are bound to get anemic. So we have to add iron. Though the things are a little different in the Western world where they are taking heme iron, जिसकी absorption बहुत अच्छी है. तो डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, मैंने बताया ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल डिजीजेस, इन सब से जूझ रही हैं. इसीलिए बहुत सारे रीजंस है कि ऑल वुमेन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ट्रॉपिकल एरियाज मस्ट टेक आयरन. द अदर
there are other conditions that make the pregnant women specially predisposed other than physiological anemia, or conditions where more iron is required. वैसे ही आयरन की कमी है एक बच्चे में, वो उसे तब भी चाहिए, अब दो हो जाएंगे तो और ज्यादा अनीमिया के चांसेस हैं. Similarly, if the interval is less, all this you know that women doesn't get enough chance. She doesn't use any contraceptives, getting repeated pregnancies again and again. I have talked to you about infections and certain conditions. जैसे हमने पढ़ा था कि मलेरिया, अभी मैंने बताया कि हेमोलिसिस करते हैं वो पैरासिटिक इन्फेक्शन. इसी तरह से पीआईएच में भी हेमोलिसिस ही इवेंट है जहां हेमोलिसिस की वजह से अनीमिया हो सकता है. प्लास्टिक अनीमिया रेयर लिखा है, पर हम लोग टर्शरी केयर सेंटर में आ रहे हैं तो हमारे पास ओकेजनली आते रहते हैं केसेस, इतना रेयर भी नहीं है. प्लास्टिक अनीमिया में आपको सारे प्लास्टिक के साथ में फिर बोन मैरो की और भी आपको डेफिशिएंसीज मिलेंगी सर. ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपैरिटी, वन थिंग, एक्यूट ब्लड लॉस, एपीएच, पीपीएच, तो ये दोनों की प्रेजेंटेशन अलग अलग दिखती है, क्रॉनिक अनीमिया और एक्यूट अनीमिया की. ये मैं अभी जब क्लिनिकल फीचर्स आते हैं तब बात करती हूँ. सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फोलेट. हाउ इम्पोर्टेंट इज फोलेट? बाय कॉजिंग सेल डिवीजन इट नॉट, अगर ये नहीं होगा तो इससे ना ही ये भी होगा कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी और अबॉर्शन हो रहे हैं. इसी के साथ में न्यूरल ट्यूब, क्योंकि ये सेल डिवीजन में पार्ट ले रहा है, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स फोलेट डेफिशिएंसी से हो जाता है. अब सीवियरिटी की जहाँ तक बात है, सिम्टम्स जो हैं अनीमिया के ये बहुत सटल होते हैं. आप इस पे ना देखें, बस सुने मेरी बात सब लोग. इतने माइल्ड होंगे कि आप गैस ही नहीं कर पाओगे कई बार जब तक उसकी जीभ नहीं निकाल के देखोगे. ठीक है. और बहुत देर तक पेशेंट, क्योंकि कंपनसेशन होता रहता है ना, मान लो कि अनीमिक है कोई, उसका हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को, तो बहुत देर बॉडी कैसे कंपनसेट करती है? हार्ट तेज तेज पंप करता है. हार्ट पंप करता है जिससे कि वो ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा रेट से पंप करेगा ना, तो फिर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जो है वॉल्यूम ब्लड जो है पंप होगा टिश्यूज को. तो हार्ट का कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म. तो बहुत बार अनीमिक होगी, 5-6 ग्राम होगा, उसकी हार्ट ने तेज गति से उसको बीट करा कर करके सिम्टम्स आने ही नहीं देगा, बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी. जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका होगा. तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स जो आप सोचते हो कि ब्रेथलेसनेस, इसको आने में टाइम लगेगा. और कॉम्पनसेशन हर एक में होता है. कॉम्पनसेशन इज दैट ओनली दैट की अनेमिक वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, यू नो, इनमें सिम्टम्स आने के अलग रीजन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन वगैरह की वजह से. अब बेसिकली सिम्टम्स क्या है तो सब जानते हैं, इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थकना, काम ना करने का मन, कहीं दिमाग कहीं लगना नहीं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना. ये तो वैसे वाले सिम्टम. थकान महसूस करना, कानों में कभी कभी उसे बोले कि झुंझुनी सुनाई देती है, आवाजें सुनाई देती, वो उसे पागलपन नहीं है. टिनिटस जिसे कहते हैं, आप सब जानते होंगे, टिनिटस पता चलने लगता है. वर्टाइगो थोड़ा कम होता है, टिनिटस मीन्स कान बजने लग जाते हैं, आवाज सी आती है. तो ये सब फीचर्स हैं जो शुरू में स्टार्ट होते हैं. और जो बाकी फीचर्स हैं, जब डिकॉम्पनसेशन, ब्रेथलेसनेस वगैरह तब हो रही है जब फाइनली हार्ट जब है बीट कर करके थक गया. अब वो ऑक्सीजन, हार्ट भी थक गया, वो भी उतना पंप नहीं कर पा रहा, और हीमोग्लोबिन की भी इतनी डेफिशिएंसी हो गई है कि बार बार पंप करने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं मीट कर रहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बढ़ नहीं रहा. पहले तो हीमोग्लोबिन की जो कमी की कसर है वो हार्ट ने तेज तेज पंप की, उसके बाद हीमोग्लोबिन इतना कम होता जा रहा है कि अब हार्ट के बस की नहीं है, तो ऑक्सीजन डिवीजन, और उसके बाद एक और समय आएगा कि हार्ट थक जाएगा पंप कर करके. तो इन सब वजह, जब ये सब स्थिति आती है तब ज्यादा एविडेंट फीचर्स नजर आते हैं. जैसे कि वो बोलेगी उसे सांस फूल रहा है, उसे सूजन हो रही है, और उसे पैल्पिटेशन हो रहे हैं. पैल्पिटेशन मतलब पेशेंट को ऐसे पूछना, मैं हिंदी इसलिए बोल रही हूँ कि सिम्टम जो पेशेंट हिंदी में बताती है, पैल्पिटेशन हम लिखते हैं, वो बोलेगी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में धड़कन महसूस होती है. तो इस तरह के फीचर्स आने लग जाते हैं. तो आपको पूछना चाहिए कि डिस्निया जो है, सांस लेने की दिक्कत लेटने पे हो रही है कि बैठने में, हार्ट डिजीज अनीमिया वगैरह में लेटने पे होता है, ऑर्थोपनिया कहा जाता है, तो उसको डिस्निया होने लगेगा. किस तरह की एक्टिविटी, देखो ये जो अनीमिया है
ये सारी जो सिम्टम है, अभी इसमें केस स्टडी भी है लास्ट में एक डिस्कशन के लिए, तो हम अनीमिया डिस्कस कर रहे हैं, सारे लोग जो कैंडिडेट हैं, जो सारे पार्टिसिपेंट है, सब अनीमिया। अरे व्हाई देयर इज नो डिफरेंशियल डायग्नोसिस? अनीमिया itself, you know, whenever you see a case of anemia, patient की शक्ल पे नहीं लिखा कि वो anemic है. She will come with these symptoms, galaxy of symptoms, and you will have to think कि किस बीमारी में फिट होता है, सारी चीजें देख के. और हो सकता है 2 बीमारी एक साथ हो, अनीमिया भी हो और हार्ट डिजीज भी हो. तो ये साथ, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, पता है, डिस्निया, स्वेलिंग, इजी फैटिगेबिलिटी. तो अनीमिया के सारे फीचर नॉर्मल प्रेगनेंसी से भी मैच करते हैं, तो वो तो आप क्लिनिकली पहले देख लोगे. अनीमिया में भी मरमर सुनाई देता है और हार्ट डिजीज में भी मरमर सुनाई देता है. तो देर आर डिफरेंट. हार्ट डिजीज तो अनीमिया में वैसे हो जाएगा जब उसको CHF हो जाएगा, तो बट दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. पर किसी का अगर हार्ट में कोई वेल्व ही खराब है तो भी उसके ऐसे ही सिम्टम्स आएंगे. तो भी सी मल्टीपल चीजें, उसमें अलग तरह का मरमर सुनाई देगा, पेशेंट की हो सकता है पास्ट हिस्ट्री हो, नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज हो. तो सारी चीजों को मिला के देखिए कि सिम्टम किसमें फिट बैठ रहा है. सबसे पहली बात है कि डिस्निया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रेगनेंसी में भी मैंने बोला कि डिस्निया होना आम बात है. जब भी वो डिस्निया जो नॉर्मल एक्टिविटी करने पे होता है, तो वो आपको भी होगा, मेरे को भी होगा और प्रेग्नेंट लेडी को भी होगा. वो डिस्निया जो हम कर सकते हैं, जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी उतना काम कर पा रही है, और ये वाली औरत महिला नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि वो महिला वाकई डिस्निक है. मान लो कि 30 कदम चलने पे किसी को डिस्निया हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी को. आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज 30 कदम चल के डिस्निक हो जाएंगी. तो ये डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेगा कि ये डिस्निया पैथोलॉजिकल है, इसको माने. तो ये सब जज करना पड़ेगा. हर औरत कहेगी डिस्निक, हर एक को थोड़े ना हार्ट डिजीज या अनीमिया हो जाएगा. अनीमिया तो फिर भी आप कर लोगे, आपको हार्ट डिजीज से भी डिफरेंशिएट करना, भले मरमर देखो. पहली बात कि ये कब डिस्निया को पैथोलॉजिकल बोलना है. तो डिस्निया ऑन लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटी पे डिस्निया तक ठीक है, लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी अच्छा खासा उसको ब्रेथलेसनेस है, उसको दिक्कत है सांस ले, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन वगैरह. तो जब ऑक्सीजन ब्रेन को जाएगी नहीं तो ये सब होगा. सो लेट अस सी व्हाट दिस इज टेलिंग. सो माइल्ड अनीमिया एसिम्प्टोमेटिक, मैं तो कह रही हूँ तुम्हें बता ही सबको लोगों को कि मॉडरेट अनीमिया तक भी हार्ट कॉम्पनसेट करता रहेगा. थोड़ा जब तीव्र ही अनीमिया होगा तभी सिम्टम्स आएंगे. तो वीकनेस, लैसिट्यूड, है ना, और ये सब डिस्निया, पैल्पिटेशन थोड़ा सीवियर टाइप में ही आएंगे. साइंस में पैलर इज इम्पॉर्टेंट साइन. इसके साथ में ओरोडेंटल हाइजीन आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब अनीमिया है तो उसके साथ में मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज होंगी, एंगुलर कीलोसिस हो सकता है, टंग में ग्लोसाइटिस हो सकता है, हेयर के कलर में फ्लैगिंग ऑफ हेयर था, मल्टीपल डिस्कलरेशन, हेयर ब्राउन और कोर्स और ब्रिटल टाइप के हेयर होंगे. ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सजेस्ट कर रहा है. क्या दिखा रहा है? सी रेज जेवीपी. ये रेज जेवीपी जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है. यू ऑल मस्ट बी नोइंग 45 डिग्री एंगल पे रख के पल्सेशंस देखी जाती है नेक में, 2 स्केल से नापने वाली. तो ये रेज जेवीपी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का फीचर. ठीक है. टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, क्रेप्स बेसल रीजन में देखे जाते हैं जब क्रेपिटेशन. ये भी जो है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का फीचर है. ये जो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में टेंडर मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में. तो लिवर जो इनलार्ज मिलेगा उसमें टेंडरनेस होगी. एडवांस प्रेगनेंसी में हो सकता है आपको ग्रेविड यूट्रस से पैल्पेट करने में दिक्कत हो, पर इतनी भी दिक्कत कितना भी हो, 32 वीक्स में भी आप इंसिनुएट करके कोस्टल मार्जिन के नीचे आपको भले लेंथ ना पता चले, कुछ तो जो लिवर पैल्पेट होगा टेंडरनेस जरूर एलिसिट कर सकेगी. सो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हम बात कर रहे थे. तो ये क्रॉनिक अनीमिया में भी दिखती है, और एक्यूट अनीमिया मींस एक्यूट whenever there is anemia which is complicated by congestive heart failure. और हेपेटोस्प्लीनोमेगेली तब भी करके जरूर देख. हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और स्प्लीन भी इलाज है, लिवर भी इलाज है. तो सोचो जैसे मलेरिया, काला जार, ऐसी बीमारियां, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, ऐसे में हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिल सकती है.
So there are multiple things you have to keep in account when you interpret your clinical findings. Edema, is common in pregnancy, but if it is spreading over to abdomen and sarca, thighs पे ही आ गया, क्योंकि ankle edema तक common है pregnancy में. तो एडिमा जो है उसको भी बड़ा केयरफुली जज करना चाहिए. हर एडिमा देख के यू हैव टू मैच विद अदर फाइंडिंग. तो एंकल एडिमा इज वेरी कॉमन in pregnancy. If that you see anemia that is spreading all over, that may be again edema is a sign of congestive heart failure. Though there may be multiple deficiencies, there may be protein deficiency which may be contributing to edema. First of all, it may be physiological. You have to gauge what is the total condition of the patient. If she is already in failure, then you can say yes, the edema might be due to, and it is of grave degree. पेट तक अगर सूजन हो गई है, पेट में abdominal wall भी pitting है, तो वो edema अगर congestive heart failure में है patient, तो ये edema भी उसी वजह से होगा. ठीक है ना? तो सारी चीजों को कोरिलेट करते हुए fetal complication में hypoxia predisposes to certain release of factors which cause preterm labor. So these women are at risk of preterm labor. IUGR आपने बताया, abortions मैं आपको बताई सभी को, because of folate deficiency. She is risk of abortions. Stillbirth मतलब IUD. क्यों IUD होगा? Abruption can be very fatal to the fetus as well as to the mother. तो स्टिल बर्थ हो सकते हैं. और ठीक है, अगर एनीमिया फोलेट डेफिशिएंसी से है तो एनीमिक भी होगी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी बच्चे में मिल सकते हैं, उसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी. ऐसे ही बच्चों का देखा गया, जैसे ये प्रीटर्म होते हैं, IUGR होते हैं, तो क्या होगा? एबगर स्कोर इनके कम होंगे एट बर्थ, क्योंकि हाइपोक्सिया रहा है, प्लेसेंटा में हाइपोक्सिया, मदर में हाइपोक्सिया, तो ऐसे में मिकोनियम पैसेज इन द, बिकॉज एस्फिक्सिया प्रमोट्स पैसेज ऑफ, क्योंकि किसी का भी सांस से दम घुटेगा तो कहते हैं ना कि शेर को देखते ही टट्टी पेशाब निकल जाता है. ऐसे समझ लो, जब भी हम स्ट्रेस में है, एड्रेनलिन सर्ज करता है तो एनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है. ऐसे बच्चे के साथ में वो स्ट्रेस में है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के स्ट्रेस में है, एनल स्फिंक्टर रिलैक्स किया, मिकोनियम. तो मिकोनियम इज अ रिफ्लेक्शन दैट बेबी इज अंडर स्ट्रेस ऑफ हाइपोक्सिया, स्पेशली अगर डिलीवरी से पहले का टाइम है. एकदम अंत में लास्ट मैच्योर हो जाती है जब जीआई ट्रैक्ट, तो 40 वीक्स पे तो ऐसे ही निकल जाएगा. लेकिन इससे पहले, जब काफी समय पहले अगर 34-36 पे दिख रहा है, तो इट इज अ साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. तो ये सब देखने में ज्यादा मिलते हैं. सी, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस वाज वन थिंग आई डिडंट टेल यू. सब इन्वोल्यूशन सबको मालूम है, because anemic women are at risk of infections. So uterus doesn't involute very in a good pace, क्योंकि एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो रखा है, एंडोमेट्राइटिस हो रखा है. क्योंकि वो एनेमिक थी तो शी वाज एट रिस्क ऑफ एंडोमेट्राइटिस, उसे हो गया इन्फेक्शन. एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा तो एंडोमेट्राइटिस से मायोमेट्रियम, चाहे जहां, वो रिग्रेस नहीं करती मसल्स अपने साइज. तो एक बात सब लोग ध्यान रखें, बोल रही हूँ इसलिए और ध्यान से सुने, कि वो यूट्रस जो एब्डोमिनल ऑर्गन था, डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद, इस रूल को याद रख लीजिए, वो एब्डोमिनली नहीं पेल्पेट होता. बस इतना याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा कितना इन्वोल्यूट करता है वो नहीं याद रखने की जरूरत है. अगर 2 हफ्ते बीत गए, तीसरा चौथा हफ्ता, और फिर भी यूट्रस फील हो रहा है, तो दैट मीन्स यूट्रस अपनी गति से, सही गति से इन्वोल्यूट नहीं हो रहा, गति कम है, सब इन्वोल्यूशन कम है, इन्वोल्यूशन. तो इट इज अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन एंड एनेमिक वुमेन आर एट रिस्क. जब सब इन्वोल्यूट करेगा तो क्या रिस्क होगा? सेकेंडरी पीपीएच का रिस्क. एंड among this is, I think, which was left out, and she's as it is at risk of infection, so prophylactic antibiotics should be given, which I'll be telling you in due course of the time when I tell you the management of anemia. These are some of the, I've already discussed: abortion, preterm, IUGR, IUD, low Apgar, meconium, which is not written here, and neonates are more at risk of anemia, hypertension. ये चीज जरा ध्यान से सुने कि, अच्छा, एक चीज जो मैं बताना चाह रही थी कि प्लेसेंटा में और मदर में हाइपोक्सिया, तो ऑक्सीजन डिलीवरी बच्चे में भी कम होगी. ये सब ने
एक डॉक्टर साहब ने भी बोला, शायद डॉक्टर निशा है, कि इन्होंने बुरी बात जिक्र उन्होंने भी की इस बात की, बहुत अच्छे। एक बात कहना चाहूंगी, भले ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, तो इट इज नॉट रियली ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे को कम जा रहा है। क्यों ऑक्सीजन कम जाएगा? मदर में सैचुरेशन कम है, लेकिन बच्चे में तो हीमोग्लोबिन बराबर है। अब अगर बच्चे में हाइपोक्सिया हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे सारे न्यूट्रिटिव फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आयरन डेफिशिएंट है मदर, बच्चे में हीमोग्लोबिन कम होगा, नियोनेट में, सॉरी फीटस में, बच्चा एनीमिक नहीं होता। ये जो फीटस है, अगर मदर का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, तो फीटस का हीमोग्लोबिन वही आएगा, 14-16 आएगा, बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि बच्चा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से प्लेसेंटा के थ्रू आयरन ले लेता है। तो बच्चा एक पैरासाइट के जैसे है। माँ भले ही एनीमिक हो जाए, आयरन डेफिशिएंट, लेकिन बच्चा कभी एनीमिक, वो सारा आयरन चुसता जाएगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। So because of other causes of other nutritional deficiencies, the hemoglobin may remain normal. Due to other factors, baby may become hypoxic. Or so because of hypoxia, maybe because of IUGR and premature. So they may be the cause, but not oxygen delivery or oxygen carrying capacity, because the hemoglobin remains the same. I hope you are not getting confused and you have got my message that neither hemoglobin or oxygen are deficient. When the folate has not been there and the baby's growth has not been proper, so his organs are not mature, and either they are not mature because the baby was not term. So both prematurity as well as growth restriction may be cause of hypoxia rather than direct oxygen saturation or oxygen carrying capacity of the baby, because hemoglobin of the neonate is not affected, neonate or the fetus. अब बात आती है कि ऐसा नियोनेट जब फ्यूचर में ग्रो करेगा तो उसको किस किस चीज के रिस्क है। ऐसा बच्चे को अपने इन्फेंसी पीरियड में ही अनीमिया हो जाएगा, बिकॉज उसके स्टोर्स नहीं होंगे। भले हीमोग्लोबिन सही हो, स्टोर्स ना होने की वजह से ऐसा, क्योंकि मदर्स मिल्क में बहुत आयरन नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को, जैसी माताओं के बच्चों को आयरन देने की जरूरत है इन्फेंसी में। और लॉन्ग टर्म रिस्क हैं ये, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन रिलेटेड, अफेक्ट, इमोशंस, ये तो इफेक्ट हो ही रहे हैं। ये तो चलो एक इमोशनल एस्पेक्ट दिखा रहा है, ब्रेन से रिलेटेड, या उनको मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तक के रिस्क पे हैं ऐसे एनीमिक बच्चे, आईयूजीआर बेबीज। दे आर एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी। तो अनीमिया के इतनी परेशानियां अनीमिया से। ये भी जानना जरूरी है कि अनीमिया के क्रिटिकल पीरियड क्या क्या हैं। ये इसलिए जरूरी है जानना कि हमारे को, अभी हम इसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट इसी से ड्रिवन है कि व्हेन वी थिंक आवर पेशेंट इज एट द हाईएस्ट रिस्क। तो एंटीनेटल पीरियड में ये हाईएस्ट रिस्क ऑफ अनीमिया तब होता है जब 32 वीक्स हो जाती है प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि उस समय मैक्सिमम प्लाज्मा डाइल्यूशन हो गया है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया है, तो हीमोग्लोबिन डाइल्यूशन की वजह से कम है, और हार्ट पे मैक्सिमम लोड पड़ रहा है डाइल्यूटेड ब्लड का। ऐसे में अगर आयरन डेफिशिएंट हो जाएगी तो डाइल्यूटेड ब्लड जो है वो वैसे ही हार्ट पे ज्यादा लोड कर रहा है, ऊपर से आयरन भी नहीं है, तो हार्ट पे डबल मार पड़ेगी। एक वॉल्यूम ज्यादा जूझना करना पड़ रहा है, और ऊपर से उसकी वजह से चलो डाइल्यूशनल एनीमिया था, ऊपर से आयरन कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो गई। तो एट 32 वीक्स when there is peak of volume expansion, iron deficiency is bound to cause any additional factor will cause predisposed to congestive heart failure, like either anemia at this time or heart disease. All these are critical period for the women because of increased maximum plasma volume expansion at this time during labor। इसलिए बोला गया है कि लेबर के हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कार्डियक आउटपुट और कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाता है, और 40-50% कार्डियक आउटपुट जो बढ़ता है वर्कलोड पहले 9 महीने में, इतना ही ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बढ़ जाता है। 15% और बढ़ता है, 40% के ऊपर 15% मतलब 55, एंड अदर 40% मतलब 80% वर्कलोड बढ़ जाता है। और
100 वर्क करता था तो 180 वर्क करना पड़ रहा है सेकंड स्टेज में उसे, इतना ज्यादा वर्क उसका बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में 500 ml ब्लड जो है एक्स्ट्रा हार्ट को जा रहा है। हार्ट वैसे ही अनीमिक बेचारा थका हुआ है, वो एक्स्ट्रा ब्लड को नहीं ले सकता, तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड पंप हो रहा है। तो इस रीजन से लेबर भी एक रिस्क फैक्टर है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अगेन प्लेसेंटा और इतने बड़े यूट्रस में से यूट्रस श्रिंक कर जाता है, इन सब का ब्लड जाता है, ये 1 लीटर के आसपास है। हार्ट इसको केटर नहीं कर सकता, वो उसके बस की नहीं है इसको संभाल पाना। फिर जब हार्ट आगे नहीं ब्लड को जाने दे रहा तो पीछे की ओर दौड़ेगा, तो पीछे की ओर लेफ्ट एट्रियम से क्या जाएगा, लंग में चला जाएगा। तो लंग में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हैम्पर होगी, ठीक है ना। तो पल्मोनरी एडिमा होगा, जब हार्ट आगे पंप नहीं करेगा तो पीछे जाएगा, तो वो लंग में पानी जाएगा। इन सब रीजन से एनेमिक विमेन बहुत ज्यादा ब्लड को हैंडल करने में सक्षम नहीं रहती। अर्ली प्यूपेरियम में मैंने आपको बता दिया देयर इज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, और 5 महीने और तक एक और टाइम भी है जब इसको पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी होने के। तो ये सब क्रिटिकल पीरियड्स का ध्यान रखिए, किस किस वजह से पेशेंट को रिस्क हो सकता है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप इनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको याद रहेगा। स्पेशली लेबर, इमीडिएटली आफ्टर लेबर और अर्ली प्रिपेयरिंग में मैंने बताया कैसे होगा। लिम्ब मूवमेंट करें, स्टॉकिंग्स पहने, हाथ पैर हिलाते रहे, भले हम एपेरिन चला देते हो, इन सब से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांसेस कम है। लेबर और इमीडिएटली डिलीवरी का अभी मैं ड्यूरिंग द व्हेन आई टेल यू द मैनेजमेंट तब बताऊंगी। तो पहले तो क्रिटिकल पीरियड ये याद भी रहने चाहिए कि ये बड़े क्रिटिकल हैं, इनको मैनेजमेंट हम ध्यान रखें, नहीं तो मरीज प्रॉब्लम में लैंड कर जाएगी। सो this now we will instead of looking at the slides, just try to the management of anemia may be very big tables, and you are trying to memorize. Just don't look at the tables, and remember one thing, that management will depend on the degree of anemia and the gestational age. Related to the degree of anemia is also the symptoms, whether symptoms, how symptomatic she is. So all these things to taken together, we decide how to give treatment. So when I'll just scroll into the rest of the slides, you will see any anemia when it is any period of gestation. If anemia is such that the hemoglobin is less than 7, answer is blood transfusion. Answer is blood transfusion. And if it is less than 5, definitely at district level or a tertiary care center, you must refer the patient when it is less than 7. So any hemoglobin less than 7, remember that patient needs to be transfused blood irrespective of gestational age. Anemia which is 10 to 10.9, which I told you was mild, at any time can be managed by oral iron therapy. Fine. Now, there is only a question mark regarding the moderate degree of anemia. See here, you can see that again in all the gestational ages, less than 7 blood transfusion, and 9 to 11 is, they have written it as 9 to 11, a little bit including the moderate variety also. Therapeutic oral iron is the answer. Now the dicey part to remember where it is changing is the 7.1 to 8.9 category. कभी उसमें पेरेंट्रल आयरन आ जाएगा, कभी ब्लड आ जाएगा, कभी ओरल आयरन आ जाएगा। तो यहाँ पर बस हम याद रखें कि कब हम क्या करेंगे। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला है, 16 हफ्ते मान लें या 13 हफ्ते माने तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसमें दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाँ, मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया एज वेल एज मॉडरेट टू माइल्ड एनीमिया को एक साथ ट्रीट किया गया है, और सीवियर एनीमिया को आंसर एक ही है, चाहे वो जल्दी हो चाहे कभी भी हो। तो मॉडरेट एज वेल एज माइल्ड एनीमिया, ज्यादा एनीमिया नहीं है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है,
अभी बहुत दूर है पूरे 9 महीने बिताने के लिए, और वह एनीमिक ही है, तो हम इसको ओरल आयरन देते हैं। और अब से शुरू करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप उसे बीडी देते हैं along with vitamin C and vitamin B12। अब इस स्लाइड में डीवर्मिंग दिख रही है एल्बेंडाजोल के साथ। तो एल्बेंडाजोल जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे आशा एनएम, आई डोंट नो इफ दे आर बीइंग टोल्ड और नॉट, आई विल टेल यू समथिंग व्हिच इज totally theoretical and correct, not theoretical, it is academically correct, that albendazole is category C drug and mebendazole is category B. If at all you have to give in first trimester, give mebendazole which is 1 BD for 3 days. वो उसकी mebendazole की ये dose है. Albendazole is category C. So if it is in the first trimester, preferably give mebendazole, or otherwise at any time if she is giving coming in pregnancy, albendazole can be given. It is a single dose tablet, so easier to administer. So here, this is how you can choose which drug to give. Besides the availability being an issue, mebendazole can be given anytime in pregnancy, but dosage is for 3 days, while albendazole is a single stat dose. So this answers about the deworming. All pregnant women should be routinely given deworming. It is whether anemic or not anemic, they have to be given. Like everybody has to take prophylactic iron, everybody has to take deworming also. When they become anemic, they take the therapeutic dose. Now here I would like to say that whatever is written is not actually, may not be practically feasible. With milder degrees of anemia in the first trimester, you can even leave treating them, and unless she is symptomatic, because if you give iron therapy, that to two times, patient is already having nausea and vomiting of pregnancy, she will not be able to tolerate. It will be better if you take care of her nausea, you alleviate her nausea and vomiting, she eats properly, that will take care of anemia. If you add on, without taking care of her nausea vomiting, if you add on iron tablets, then she will be all the more, she will become worse. So see to it her nausea vomiting gets corrected. And maybe you will have to decide whether you would like to give her iron therapy at 10 or 11 gram 10 gram percent when she's only 10 or 12 weeks. Another thing I would like to add, that hemoglobin less than 7 is written as an indication for blood transfusion. So evaluate भी लिखा हुआ, evaluation. So if you think she is not symptomatic, here is the role where you can make a decision that look, she is not symptomatic. If I give her iron, whether I should give or not. यहाँ पर इसने इस ग्रुप को अलग इसलिए क्रब किया है क्योंकि इसने कहीं भी पेरेंटल आयरन को नहीं लिखा है. As per the latest information available, the iron sucrose is now considered to be category B drug. Category B drugs are the ones which can be safely given in pregnancy. So at that time, probably this thing had not come up, so that is why it has not been included. So if you are given an option of, when I have already told you that it is category B drug, now you only decide how easy it would be for you to give her iron, either by oral route or by parenteral route, when the apprehension for the drug safety is no more there. You are not apprehensive कि अब ये drug देंगे पता नहीं बच्चे को safe होगा कि नहीं. Then I think I have already answered you that for me and for you as well, it will be easier to administer parenterally, because with oral irons there will be too many issues regarding compliance, and we may not. It should not be that instead of improving a condition, we have made it worse. So you can think of giving her parenteral iron also. If you want to give oral, you give and try, then you will gain your experience how easy it is to administer oral iron in first trimester. Very difficult. Another thing, that do not be apprehensive. The guidelines say that anemia can be managed, because we are encouraging you, we are trying to make you more confident in giving parenteral iron. So as well the blood transfusion. So at your level, only anemia should be corrected either with parenteral iron or with the use of blood transfusion. Don't be hesitant. The goal at the end of these sessions is to make you competent enough to be able to deal with parenteral iron as well as blood transfusion. See, 16 to 32 weeks. Now here we can see that अभी जितना 16 हफ्ते के उधर नजदीक होगा, जिस तरफ ये बहुत बड़ी रेंज है ना, तो उतना उस तरफ क्या होगा कि आप
थेरेप्यूटिक ओरल आयरन, क्योंकि एनीमिक है ना, मॉडरेट एनीमिया में देखिए 9 to 11 में भी थेरेप्यूटिक, देखिए थेरेप्यूटिक और प्रोफिलैक्टिक डोज में अंतर यही है कि 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन थेरेप्यूटिक में बीडी देना और प्रोफिलैक्टिक में ओडी। जब आप प्रैक्टिकली बीडी डोजेस दोगे, अगर आपका पेशेंट, बेटर है कि थेरेप्यूटिक डोज भी बीडी वाली पहले देने से पहले आप ओडी ही दो। कुछ नहीं लेती थी, आप 100 mg दो, अगर वो खा लेती है, थोड़े दिन बाद आती है कि डॉक्टर साहब खा रहे हैं, तो आप उसे बीडी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा पड़ रहेगा स्टेप वाइज राइज करने के। अगर आप सीधा ही बीडी कर दिए और वो गुस्सा खा गई कि अब तो मैं नहीं खाऊंगी, बड़ी बेकार गोली है, तो बड़ा मुश्किल होगा उसको लोअर पे कन्विंस करना, और आपके पास समय भी है, तो फिर आप थेरेप्यूटिक पे आ जाओ, एक गोली करके दो। ये एक प्रैक्टिकल टिप है जो एक्सपीरियंस की जाती है, रादर देन बस पेशेंट के ऊपर थोप देने से कि आप 2 गोली खाओ, चाहे वो खा पाए चाहे ना खा पाए, देखो वो 1 गोली खा पा रही है कि नहीं। देन यू गेन हर कॉन्फिडेंस, देन यू टेल हर कि अगर 1 गोली आपको पच जाए 1 हफ्ते तक खा के देखिए, तब आप 2 कर दीजिए। दिस इज व्हाट आई टेल टू माय पेशेंट्स, फर्स्ट यू सी दैट वेदर यू आर एबल टू टॉलरेट 1 टैबलेट और नॉट। सो सिमिलरली है, मैं ये कह रही थी कि 16 से 32 हफ्ते या जितने भी ये आ रहे हैं, इसमें बस ये याद रखिए कि जितना 16 हफ्ते के नजदीक होगा टुवर्ड्स दैट साइड, देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्स टू, एनफ टाइम फॉर वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स टू ओरल या पेरेंटल आयरन। ओरल और पेरेंटल आयरन दोनों का रेट ऑफ रिस्पॉन्स सिंस टाइम मेमोरियल यही पढ़ाया गया है, यही कहा गया कि सेम है, दो थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस आईवी आयरन में है, पर अगर रिस्पॉन्स टू थेरेपी दोनों में सेम है, तो देर इज नो गुड रीजन दैट यू शुड फोरगो ओरल आयरन और सबको पेरेंटल देते रहो। ट्राई द ओरल ऑप्शन फर्स्ट। तो 16 हफ्ते के करीब है, आप ओरल आयरन दे, आपके पास बहुत समय है, क्योंकि आईवी के लिए हो सकता है आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आना पड़े उसे, ओरल आयरन वो घर पे ले सकती है। अगर कंप्लायंस इशू है, उल्टी कर रही है, अगर वो उल्टी कर रही है या वो खा नहीं रही, आपको लग रहा है पेशेंट आनाकानी कर रही है, उसके घर वाले कह रहे हैं वो गोली फेंक देती है, वो लेती ही नहीं है, तो इन सब इश्यूज में आप पेरेंटल आयरन सोच सकते हैं, पर ओरल आयरन ट्राई तो करें। तो ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है थेरेप्यूटिक आयरन और पेरेंटल आयरन का, ये इसी तरह से आपको जजमेंट मेक करना है कि हाउ यू विल जज विच टाइप टू डू। एनीवेयर मोर देन 9, आई हैव टोल्ड यू, ऑल इन ऑल प्लेसेस इट इज थेरेप्यूटिक आयरन, ऑल प्लेसेस लेस देन 7 इट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देख रही हो पढ़ाई हो रही है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की टीचर है। डॉक्टर शशि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, तो 16 हफ्ते के आसपास जो है, ये पहले भी हमने पढ़ा था, अगर सीवियर एनीमिया है और जितना कम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 16 वीक्स के आसपास 20 हफ्ते, अगर आपके पास समय है और आप पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आप इसको पेरेंटल आयरन भी दे सकते हैं, ये जो 7 ग्राम से कम है। और मोटा मोटा यही याद रख दीजिए, नहीं याद आता तो 7 से कम ब्लड देंगे और 9 से ज्यादा थेरेप्यूटिक ओरल आयरन। जब आपके पास खुद सामने मरीज आएगा ना और उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सांस भी नहीं फूल रहा होगा और इसका हेमोग्लोबिन 6.5 होगा, तो डॉक्टर पेशेंट ही बोलेगा डॉक्टर साहब ब्लड ना चढ़ाएं, तो खुद याद आ जाएगा कि पेशेंट को क्लिनिकली असेस करें। सिर्फ लकीर में अगर किताब पर याद करिए, नहीं हमने तो आरआरटीसी वाले प्रोग्राम में पढ़ा था कि 6.5 में ब्लड ही चढ़ाते, तो आपको उसको इसमें लिखा है पिछली स्लाइड में और इसमें भी लिखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑब्लिक पेरेंटल आयरन, सब में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉमन है, लेकिन टुवर्ड्स अर्लियर जेस्टेशन आप उसकी एनीमिया के साथ में उसकी क्लिनिकल कंडीशन देख लें। अगर टाइम परमिट कर रहा है कि आयरन का रिस्पॉन्स आएगा, मतलब 16 हफ्ते के आसपास, तो आप आयरन भी दे सकते हैं, इवन सीवियर एनीमिया भी। जितना आप प्रेगनेंसी में बढ़ते जाएंगे आगे, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना है। क्यों? जितना सीवियर एनीमिया होगा। सीवियर एनीमिया में 32 हफ्ते पे आपको मालूम है कि हमारे को प्लाज्मा डाइल्यूशन की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। अगर हम वेट ही करते रह गए तो सीएचएफ में लैंड कर जाएगी, ना ही उसके पास इतना समय रहेगा सीवियर एनीमिया के पास कि वो एकदम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन तक पहुंच जाए। तो ना तो समय है और ये वो टाइम्स है जब वो एट रिस्क है। इतने कम हीमोग्लोबिन है, 7 ग्राम से कम में, उसके पास रिजर्व भी नहीं है कि इस समय में वो अपना पेरेंटल या ओरल आयरन से अपना रिजर्व इतना अच्छा कर ले कि उसको कोई खतरा ना हो। तो यहाँ हम उसकी सबसे ज्यादा मदद ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके कर सकते हैं। मॉडरेट एनीमिया में 7.99 तक भी एनीमिया है, तो आप पेरेंटल आयरन 36 वीक्स तक भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों ये किया गया है, अभी आगे भी पता चलेगा। आयरन का रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है, आपको सीएचसी लेवल पे आपको बताया जाएगा कि आपने आयरन स्टार्ट किया, आप 1 महीने बाद आना। मैं उस स्लाइड से थोड़ा डिफर करती हूँ, क्योंकि आइडियली हीमोग्लोबिन राइज पहली डोज आयरन देने के 2 हफ्ते बाद कर जाएगा।
पर कुछ इश्यूज होंगे पेशेंट के कंप्लायंस में, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से, तो आपने 1 महीने बाद बुला लिया। अब रिस्पॉन्स टू आयरन जज करने में हम 1 महीना लगा देंगे, तो पता चला रिस्पॉन्स नहीं आया तो 15 दिन और एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए। तो अब आप जज करिए, आप 15 दिन बाद बुलाएंगे अपने मरीज को कि 1 महीने बाद। तो राइज ऑफ हीमोग्लोबिन, पहली बार जो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा वो हीमोग्लोबिन का राइज 2 हफ्ते बाद दिखेगा, हीमोग्लोबिन के अंदर जो राइज दिखना है। और इसके बाद एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो हर हफ्ते 0.8 ग्राम के रेट से, मतलब 1 ग्राम से भी थोड़ा कम हीमोग्लोबिन हर हफ्ते बढ़ेगा, पहली बार 2 हफ्ते में बढ़ेगा। तो ऐसे हम देखें तो ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ये 3 हफ्ते तक 2 ग्राम बढ़ जाएगा लगभग। तो अगर 35 वीक्स है तो 38 वीक्स तक 9 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाएगा, फिर भी ठीक है, कोई बहुत कम नहीं है। तो इस तरह आप जज कर पाओगे कि हम ये जब ये ट्रीटमेंट के तरीके हमने चुने हैं कि क्यों हम कभी पेरेंटल आयरन दे रहे हैं, कभी ये हम ये अंदाजा इससे लगाते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट करें कि इसको हीमोग्लोबिन राइज करने में कितना देर लग जाएगा। 2 हफ्ते पहली बार हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और उसके बाद हर हफ्ते 0.8 ग्राम बढ़ता चलेगा। पहली बार में भी वो जो राइज दिखेगा 0.8 ग्राम, वो पहली बार जो है 2 हफ्ते बाद आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो सीधे सीधे 2 हफ्ते तो सीधे चले गए। तो 36 वाले के बाद भी 38 तक टाइम है, तो वो अब डिपेंड करता है कि उसका हीमोग्लोबिन कितना कम है। और 7 ग्राम से भी अगर 3 हफ्ते आप लगाएंगे तो ये क्या कहते हैं, तब आपको जो है ये पेरेंटल आयरन में चांस है कि थोड़े 2 हफ्ते बाद भी उसका कम से कम 8 ग्राम तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। मोर देन 36 वीक्स, अब इसके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। अब मॉडरेट अनीमिया में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोच लेना चाहिए, स्पेशली अगर सिम्टोमेटिक है। मैं इससे एग्री नहीं करूंगी कि पेरेंटल आयरन दे, अब वो डिपेंड करता है वो 9 ग्राम है कि 7 ग्राम है। सो ये जो डिविजन, ये कैटेगरी या टेबुलेशन है, इनमें खुद ही इतना वेरिएशन है, खुद एक रेंज लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली पेशेंट का तो एक ही हीमोग्लोबिन होगा, पेशेंट की रिपोर्ट 7 to 9 नहीं आती, 7.1 to 8.9 रिपोर्ट नहीं आती, पेशेंट की हीमोग्लोबिन रिपोर्ट खाली एक आती है, 8.8 आएगी या 8.9। इसीलिए बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ये टेबल्स कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि ऐसा ही चलेगा। आपके पेशेंट का कितना हीमोग्लोबिन है, 9 ग्राम है और 36 वीक्स है, तो आप दोनों में से क्या चुनोगे? आप पेरेंटल आयरन दे दो। 7 ग्राम है, 36 वीक्स है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन चुनो। तो इसीलिए ये रेंजेस, ये सब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। आपको अपने माइंड में उस सिचुएशन को क्रिएट करके पेशेंट के लिए जो बेस्ट है वो सोचना। मेडिकल साइंस इज नॉट रियली मैथमेटिक्स समटाइम्स, स्पेशली क्लिनिकल सिनेरियोज जो थोड़े बहुत ग्रे जोन्स रखते हैं। नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट, एवरीथिंग चेंजेस। So this is what I was telling you. Whenever the hemoglobin is less than 7, the answer is blood transfusion only. If the hemoglobin is less than 5, hospitalization is required. And here you don't see what is her gestation age. She is at high risk of having CHF. If the hemoglobin is severe, but it is more than but it is more than 5 but less than 7, then she can be considered for iron sucrose therapy. However, if even in such a range, 5 to 7 range, if she is in the last trimester, she needs hospitalization, because perhaps you will think about, definitely you will think about blood transfusion. Yes. See, this is an iron sucrose wrapper. It is showing you, maybe pictorial things will have a longer imprint. This one ampule wrapper is showing that the ampule is of 5 ml. And if you can enlarge, I think you all can enlarge, you can see that it is a 5 ml ampule which is containing 100 milligrams of elemental iron. I hope this will have a long lasting image and impression on your mind that each iron ampule is a 5 ml ampule, with each one carrying 100 mg of iron. So in one go, we can give 200 mg iron in one sitting. So that means it is how many ampules? It is 2 ampules that we can give together. The left side is showing iron pyripheric, that I will tell you later. Previous slide, iron sucrose. Iron sucrose. Previous.
previous, yes. So see, that is why I showed you that wrapper. 200 mg का मतलब हो गया 2 एम्प्यूल, क्योंकि एक एम्प्यूल में 100 mg था 5 ml के, तो 2 एम्प्यूल का मतलब 200 mg और 10 ml सॉल्यूशन हो गया आयरन सुक्रोज का। ये 100 ml NS की छोटी छोटी जो बॉटल्स आती हैं उसमें डालना है, तो उसमें ऑलरेडी 100 ml है, तो 110 ml के लिए स्पेस नहीं है, तो आप 10 ml नॉर्मल सलाइन पहले उसमें से निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो उसमें जगह नहीं होगी 10 ml आयरन सुक्रोज डालने की। तो आपने उसमें से 10 ml नॉर्मल सलाइन निकाल के फेंक दिया और 10 ml आयरन सुक्रोज उसमें इंजेक्ट कर दिया। अब ये सलाइन में सस्पेंडेड आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा गार्डेड वे ऑफ गिविंग आयरन है, जबकि हम स्लो आईवी बोलस 10 मिनट में लगा सकते हैं, लेकिन to be on the safer side, people are apprehensive of reactions, people like to give it as infusion because 10 मिनट भी किसी को किसी के साथ बैठना हाथ में लेके मुश्किल होता है, मगर क्या करें, लेके तो बैठना पड़ेगा, चाहे इन्फ्यूजन करें चाहे बोलस लगाएं, मरीज को मॉनिटर तो करना ही है। ठीक है, हाथ पकड़ के नहीं करना, पल्स बीपी लेने का आपको टाइम मिल जाएगा अगर आप आईवी इन्फ्यूजन लगाते हैं, नहीं तो फिर आपको कोई जना, अगर आपके यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं तो कौन वही जना इंजेक्ट भी कर रहा है, फिर पल्स बीपी लेगा। आपने बॉटल लगा दी, अब चलती रहेगी साथ साथ, आप ही अगर देखने वाले हैं सब कुछ, मान लो आपने किसी स्टाफ नर्स के जिम्मे छोड़ा है, तो एक इन्फ्यूजन का ये भी फायदा है। तो इन्फ्यूजन शुड बी डन विद इन 15 to 30 मिनट्स। ये जो हमने सॉल्यूशन बना लिया 1 घंटे तक के अंदर हम इसे खत्म कर दें। इसको इस टाइम लिमिट की एक अपनी ही महत्व है कि ये टाइम लिमिट ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। कम अगर आप जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज कर दोगे, ये तो सबको मालूम है, कोई चीज़ जल्दी चला देंगे तो कोई रिएक्शन हो जाएगा, ये सब जान रहे हैं, पर क्या लेट चलाने से भी कुछ होता है? बस सिस्टर ने अपनी पूरी ड्यूटी में चला दिया बॉटल कि अब ड्यूटी खत्म होगी तो बंद कर दूंगी, 8 घंटे की ड्यूटी थी उसकी, और जब ड्यूटी खत्म, जो ये आयरन सस्पेंडेड है सॉल्यूशन में, ये ऐसे जब एयर में ऐसे रहेगा तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और इनकी वजह से इंजरी और डैमेजेस हो सकते हैं लंबे समय सॉल्यूशन के ऐसे लटके रहने से। तो ये लंबे समय लटका रहना भी इसका कोई अच्छा नहीं है कि आप बेइंतहा समय तक चलाते रहे उसको। 1 घंटे के अंदर, इसमें 30 मिनट्स लिखा है, 1 घंटे के अंदर तो खत्म ही हो जाए, आप उसे निकाल दें, ठीक है। और जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम नोट्स डालते हैं, वैसे ही आयरन सुक्रोज के लिए भी नोट्स डालने हैं, और पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि डिस्निया भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकती है, सब इस तरह के सिम्टम्स जो अभी मैं बताऊंगी जो भी सिम्टोमेटोलॉजी है। आर्थ्राल्जिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, जब भी इस तरह के कोई सिम्टम्स आए, रैश हो जाए, तो आप उस दवा को बंद कर दें। तो आपने इनको मॉनिटर करना है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, बातचीत करते रहना है उससे। और उसका रेट जो है शुरू के 5 मिनट इसलिए कम रहते हैं, जैसे ब्लड टेनर की कोई रिएक्शन आ रहा है तो आप कम रेट में जान ले, उसके बाद आप रेट बढ़ा दीजिए, 30 की जगह 60 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, 3 गुना रेट बढ़ा दीजिए उसको। ये और क्यों रेयरली कभी जब एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, इसको मीट करने के लिए हर जगह पे इमरजेंसी ट्रे में सब कुछ पड़ा होता है, एम्बू बैग, ईटी ट्यूब, एड्रेलिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन इसमें नहीं लिखा, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एविल, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ओपनर, सिलेंडर ओपनर, है ना, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए या तो नेजल प्रोंग या ऑक्सीजन मास्क, कनेक्टिंग ट्यूब। तो और साथ में आप भी जैसे ऑक्सीजन से ये पल्स सैचुरेशन भी देख सकते हैं, और ये पल्स ऑक्सीमेट्री के जो प्रोब आते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के, वो भी आपके पास अवेलेबल, मोबाइल पोर्टेबल चीज होती है जेब में रखने वाली, 2000 रुपए तक की आती है। ये अब आपको कोविड के समय आपको काफी शायद देखने को मिल गई हो बहुत से लोगों को, और बहुत बार ये पहले इतनी सस्ती चीज़ थी, पता नहीं क्यों ये इमरजेंसी के रूप में अवेलेबल नहीं होती थी, शायद अब अवेलेबल होने लग जाए और लोग देख सकें कि कितना आसानी से पल्स और बीपी, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जा सकता है। और जब हम आयरन सुक्रोज देते हैं तो एक दिन हमने 200 mg दिया। हमारे हॉस्पिटल में हम क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं मैं आपको शेयर करती हूँ, और एक वैलिड प्रोटोकॉल है। तो ये 2 to 4 डेज का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है। ये सही है, 2 डेज मान लेते हैं। आज अगर सुबह 8 बजे इंजेक्शन लगाया है, तो आज है कौन सा दिन, आज मंडे, आज मंडे सुबह 8 बजे इंजेक्शन लगाया,
तो बुधवार 8 बजे तक 2 दिन हो जाएंगे, 48 घंटे लगा दो। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी गिव आयरन सुक्रोज ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो वो आपको आंसर कर रहा है हाउ इट इज 2 days, 48 आवर्स हो गए। तो ऐसा हम 3 बारी करते हैं। 3 बारी का मतलब हो गया 200 mg एक दिन देते हैं, फिर 200 mg, फिर 200 mg। इस तरह से हमने 600 mg एक हफ्ते दे देना। सो यू गिव 200 mg। ये आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा, नहीं तो आपको कोई बताएगा कैसे। एक बार आपने 200 mg दिया, आपने आयरन डेफिसिट कैलकुलेट किया, उसका 1500 है, तो कैसे दोगे आप उसे। अभी आयरन डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी अभी आएगा, फॉर्मूला बताती हूँ। तो आप एक हफ्ते में मतलब 5 दिन में ऑल्टरनेट करते हुए 5 दिन में आप 600 mg दे दिए। इसके बाद आप 10 दिन का 2 हफ्ते का, हफ्ते 7 to 10 डेज का गैप रखें और दोबारा 600 mg तक दे सकते। ये आयरन सुक्रोज के साथ किया जाता है। हर ऑल्टरनेट डे तक 3 बार दे दीजिए, यानी कि 5 दिन में, हफ्ते में जो मंडे दिया, वेडनेसडे दिया, थर्सडे दिया, 600 mg दे दिया। अब आपको 10 दिन का रेस्ट रखना है, 10 दिन 14 दिन का रेस्ट रख के तब आप रिपीट करेंगे एक और बार 600 mg। लेट्स सी हमारे डेफिसिट क्या आते हैं, हम कितना मीट कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि उसकी डिमांड कितनी है, क्या पता उसकी 800 mg हो, आप 600 अभी दे दो और 10 दिन बाद तब दोबारा 200 mg दे देना। ठीक है, नेक्स्ट। Iron, oral iron should not be given with parenteral iron. You know why? Always keep a gap. Always keep a gap because IV iron जब हम देते हैं, बहुत सारा ब्लड में आयरन लोडेड है, डायरेक्ट ब्लड में लोडेड है। अब हम उतनी उतनी डोज तो दे दिए जितनी टॉलरेट आ सकती है। ओरल आयरन दे के अगर हम ये बढ़ा देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो प्रोबेबली दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट गिव ओरल आयरन एंड देयर मे बी रिएक्शंस। आपको समझ में नहीं आएगा किस किसको होल्ड। जब भी ब्लड दें, जब भी आयरन मतलब आईवी आयरन दें, तो ओरल आयरन को कुछ गैप के बाद में स्टार्ट करें, 1 से 2 दिन के गैप के बाद। जैसे कि अब मैंने कहा 600 mg दे दिया, 10-12 दिन रुकना है, तो ये थोड़ा ना 10-12 दिन नहीं वो कुछ भी खाएगी, ओरल आयरन ही लेगी 2 दिन। अगर अगर टॉलरेट कर लेती है ओरल आयरन, अगर वो रीजन नहीं है, नॉन कंप्लायंस रीजन नहीं है आयरन, आईवी आयरन का, खा लेती है, तो 10 दिन वो भी चला दो, फिर उसके बाद दोबारा आईवी आयरन का सेकंड वो दे देना शेड्यूल। आयरन कार्बोक्सीमोल्टोस की डोजेज या वो मैं बताऊंगी, अभी इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि ये गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा है, 2,500-3 हज़ार रुपए का है। फायदे मैं आपको बस बता सकती हूँ ताकि भविष्य में कभी आपको मालूम रहे कि हाँ ऐसा प्रिपरेशन है। ये एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में आप 1 ग्राम आयरन 1000 mg आयरन 15 मिनट में दे सकते हैं। फायदे क्या हुए कि पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो घर जाना चाहता है, आयरन आयरन लगवा के डे केयर प्रोसीजर है। सुबह आया, आपने आयरन लगाया, शाम तक मॉनिटर किया और घर भेज दिया। तो ये एंटीनेटल पेशेंट को भी दिया जा सकता है और पोस्टनेटल को भी जल्दी छुट्टी हो सकती है। पर मैंने बताया कि आयरन सुक्रोज वैलिडेट हो गया है, कैटेगरी बी ड्रग हो गया, अभी इसकी वैलिडिटी इन प्रेगनेंसी नहीं मालूम है एंटीनेटल पीरियड में। तो इट होल्ड्स एज अ प्रॉमिसिंग ड्रग ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, पर अभी एंटीनेटल पीरियड में उसके देने की सेफ्टी अभी प्रूवन नहीं हो पाई है। तो जब ये हो जाएगी तो इस तरह के फायदे, मतलब डेफिनेटली टाइम ड्यूरेशन पेशेंट्स का बचेगा। और इसमें स्टोर्स अच्छे से रिस्टोर हो रहे हैं, फेरेटिन जो है नॉर्मल हो जा रहा है 3 ही हफ्ते में, मतलब स्टोर्स एकदम 3 हफ्ते में नॉर्मल हो जा रहे हैं। कितनी जल्दी एक साथ आप सारा डिलीवरी कर रहे हो। एक जमाने में, बहुत पुराने जमाने में आयरन डेक्स्ट्रान आता था, इतने रिएक्शन होते थे या तमाम आए दिन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, इतना डर रहता था। टेस्ट डोज देते थे, उसमें 2500 mg तक हम एक बार में दे देते थे आयरन डेक्स्ट्रान का। तो 2500 नहीं दे पा रहे तो 1000 mg भी बहुत बड़ी बात चीज़ है। तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज रिएक्शन और ये सब जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होते थे आयरन डेक्स्ट्रान के साथ, वो नहीं है। टेस्ट डोज भी नहीं देनी। तो चीज़ें 20-25 साल में इतनी बदल गई कि सॉल्ट एक ऐसा आ गया जो काफ़ी हद तक 50% उतना दे पा रहा है जितना कि पहले डेक्स्ट्रान देता था, विदाउट माइनस द साइड इफेक्ट्स। तो ये आज के टाइम में, और ये ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, लगाया जा रहा है। हमारे पास भी कुछ कुछ जगह से कभी अवेलेबल हो जाता है, कभी मरीज खरीद के ले आता है, लेकिन सप्लाई में ना होने की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट है पेशेंट के ऊपर, उसकी पॉकेट पे बर्डन है। और अगर पेशेंट खरीद लेता है या अफोर्ड कर लेता है तो इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक एम्प्यूल इसका मतलब दो एम्प्यूल लगाने पड़ते हैं 1000 mg के लिए।
तो दोनों एम्पूल की कॉस्ट मिला के 3,000 रुपए के आसपास बैठती है जहाँ तक मुझे पता है. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू that this venofer is a compound which is iron sucrose only, and it is now a pregnancy is a for pregnancy it is a category B drug. So that is why I told you कि अगर oral iron first trimester में देने, क्योंकि category B, A, B, C, D, B तक A और B के A में बहुत कम ड्रग्स हैं, B में बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, C वाले हम कभी कभार दे सकते हैं, ज्यादातर नहीं देते, D तो देते ही नहीं है, और X भी होती है. तो ये कैटेगरी की बात तब आती है जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस 3 महीने में खत्म हो जाता है. फिर भी कोशिश यही होती है प्रेगनेंसी सेफ ड्रग्स ही पूरी प्रेगनेंसी में दे, पर्टिकुलरली फर्स्ट 3 मंथ्स में जब ऑर्गन्स बन रहे हैं कोई ऐसा ड्रग ना दे जिसके कोई साइड इफेक्ट हो. इसीलिए इतनी कैटेगरी A, B, C, D, A, B, B ये हम करते रहते हैं. तो पहले 3 महीने में भी अगर देना है तो इसकी जब अब एफिकेसी सेफ्टी प्रूवन हो गई है, सेफ्टी प्रूवन हो गई है, तो अब इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दिया जा सकता है. ये वो फायदा है. और अभी आयरन का फेरिक कार्बोक्सीमोल्ट तो पूरी प्रेगनेंसी में उसकी सेफ्टी नहीं पता है. तो आयरन सुक्रोज इज अ बिग यस यस यस. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. आयरन सुक्रोज फॉर पेरेंटल यूज. इट आयरन सुक्रोज हम आईवी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आईवी हाँ, द रिस्पॉन्स टू इंक्रीज जो लिखा ना 1 ग्राम पर वीक लिखा है, पहला वाला जो मैंने बता चुकी हूँ आपको 2 हफ्ते बाद ही राइज करेगा. जब आपने पहली बार डोज दिया उसके 2 हफ्ते बाद राइज करेगा. उसके बाद से 1 ग्राम भी नहीं है, हल्का सा 1 ग्राम से कम है. इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि 1 ग्राम है, 0.8 के आसपास बढ़ता है. एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगी तो फिर आपको लगेगा रिस्पॉन्स कम आ रहा है. और रिस्पॉन्स जो होता है वो आपको ये हीमोग्लोबिन के राइज में ही दिख रहा है जो 2 हफ्ते बाद दिखेगा. और आप देख रहे हैं कि एक जनरल ब्लड पिक्चर में रेटिकुलोसाइट होते हैं, इमेच्योर आरबीसी. तो जैसे ही आप आयरन देते हो तो वो आरबीसीज जो बोन मैरो में ट्रिगर के लिए बैठे थे कि अब आयरन मिले तो हम रिलीज हो जाएं, वो तुरंत धड़ाधड़ निकलने चले हो जाते हैं. और वो इमेच्योर आरबीसीज ब्लूइश कलर के रेटिकुलोसाइट ब्लू, उनका न्यूक्लियस बहुत कॉम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए ब्लू कलर के सेल्स दिखते हैं. नॉर्मली आरबीसीज रेड दिखते हैं क्योंकि इसका रेटिकुलिन जो है रेटिकुलेट मेश के जैसे दिखता है. न्यूक्लियस नहीं तो छोट आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसका मेश लाइक दिखता है. ये ब्लू कलर के दिखते हैं. तो ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट्स है ये फ्लड कर जाते हैं, और ये 5 हफ्ते में ही जनरल ब्लड पिक्चर में 5 दिन में ही ये अपीयर कर जाते हैं पेरिफेरल स्मीयर में. तो हमें पता चल जाता है कि आयरन का रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, क्योंकि हम आयरन दे रहे हैं ये सोच के कि ये अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही है. बिकॉज एट मेनी फैसिलिटीज there may not be provision for general blood picture reports. So what you are doing may be correct in some way, but places like us, we would not say that this is the correct way. तो हम भी यही गलती करते होंगे, हम भेजते ही नहीं होंगे, पढ़ते ही नहीं होंगे. आयरन दे दिया. आयरन आईवी देने से पहले एक बार जनरल ब्लड पिक्चर अगर मिल जाए और उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मिल जाए तो ज्यादा श्योरिटी होगी. इससे भी ज्यादा अच्छा होता आयरन स्टोर्स मिल जाते हैं, और मुश्किल है पेरिफेरल लेवल में, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे भी ये उम्मीद करना कि आयरन स्टोर्स पता चल जाए, हमें सीरम आयरन सीरम फेरिटिन के लेवल्स पता चल जाए, ये मुश्किल है. जनरल ब्लड पिक्चर से हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया तक पहुंच सकते हैं. आरबीसी की माइक्रोसिटिक छोटे छोटे हैं तो आरबीसी इंडेक्सेस आपने पढ़े होंगे सबने, एमसीवी, एमसीएचसी. तो एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, तो ये छोटा मिलेगा नॉर्मल से, 80 से कम मिलेगा, 85 से कम मिलेगा. तो ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया बता रहा है. तो खाली माइक्रोसाइट्स आयरन डेफिशिएंसी में नहीं मिलते, थैलेसीमिया में भी मिलते हैं. और थैलेसीमिया में ये जानना जरूरी है कि हम आयरन दे रहे हैं तो वो जनरल ब्लड पिक्चर भी सेम है, और आपने थैलेसीमिया के पेशेंट को आईवी आयरन दे दिया तो उसके लिए तो गजब हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि उनमें वैसे सीरम आयरन हाई होता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है. तो अब इतना पचड़े में पड़ने से अच्छा है अगर आपके सेंटर पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा और आप सबको आयरन लगा रहे हो. इसका मंत्र यही याद रखें कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन नहीं राइज कर रहा, आप उसको दे पेरेंटल पे पेरेंटल ठोकते मत जा. कई बार मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो एक प्रैक्टिशनर, चलो मतलब ये छोड़ेंगे कि
एक डॉक्टर के पास गया, उसने आईवी आयरन दिया, तो उससे बढ़ा नहीं, दूसरे के पास गया, फिर आईवी आयरन दिया, फिर इसके बाद तीसरे पे हमारे पास पहुंचा। तो हमारे लिए तो बहुत आसान था, पता है, ये कहना कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है। मैं थोड़ा डाउट में थी, बोले, मैंने कहा टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट में निकला, तो हमेशा ऐसा नहीं, लेकिन वो निकला ही थैलेसीमिया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर मैं तो मतलब ऐसा लगा कि उसने सोचा, अटेंडेंट सोचा कि पता नहीं इनको कैसे पता चल गया। अब और क्या सोचूं, जब आईवी आयरन दे रहे हैं, माइक्रोसिटिक अनीमिया आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसे कई बार हमने डायग्नोस किया है। ऑल्दो थैलेसीमिया प्रेगनेंसी बहुत जगह पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करी जा रही है थैलेसीमिया के लिए, पर ऑल ओवर इंडिया अभी नहीं हो रहा है एंटीनेटल में। अभी हमारे यहाँ भी टर्शरी केयर सेंटर में, मेडिकल कॉलेज में हम लोगों के लिए ये यहाँ पर एंटीनेटल वुमेन में स्क्रीनिंग बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर थैलेसीमिया चालू हो गई है। ये मैं अब हमारे लिए भी बोलूँगी। तो धीरे धीरे ये हो सकता होने लग जाए, तब और आसान हो जाएगा कि हम माइक्रोसिटिक अनीमिया को उस लाइट में देख सकें। तो अब ना आप माइक्रोसिटिक देख रहे हो ना कुछ देख रहे हो, बस हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी देख रहे हो। तो भाई आप ये जरूर देखें कि रिस्पांस टू आयरन थेरेपी आ रहा है कि नहीं। ये नहीं कि दे दनादन आईवी आयरन चलता ही जा रहा है, तब तक तो पता नहीं क्या होगा। तो इस चीज का ख्याल रखें, रिस्पांस जरूर देखें कि क्यों नहीं आ रहा। तो एक फॉर्मूला है, इसमें बॉडी का वेट आप केजी में लें, उसके बाद में हीमोग्लोबिन डेफिसिट, जैसे कि अगर 11 ग्राम हीमोग्लोबिन टारगेट है और है उसका 6, तो कितना डेफिसिट हो गया, 11 माइनस से 5, 5 को आप 2.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बॉडी वेट को केजी में लोगे, 5 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसमें 1000 ऐड कर दोगे, तो ये 780 आया, प्लस 1000 फॉर दी स्टोर्स। तो इतना सारा आयरन, ये तो अब आप डिसाइड करो कि एक बार आपने एक आयरन लेवल अचीव कर लिया, हीमोग्लोबिन लेवल, एक आयरन डोज से कितना आप उसको आईवी आयरन दोगे और कितनी कितनी देर में दोगे। इवन इफ ऐसा नहीं कि स्टोर्स इस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर टू गिव 1700 बाय parenteral route. So if at one level you can make her hemoglobin rise to the targeted level, the remaining you can cover up with the oral iron if time permits. Time permits and patient's compliance is there and she is not having side effects. Next slide. Next. These are the side effects that I told you that you will have to look for while you are infusing IV iron. And always remember that you have put the cannula correctly and there will not be extravasation of the medication into the surrounding. Otherwise, it can have a serious inflammatory reaction over the forearm, which I have already seen some cases. So once you have put a cannula, do push in normal saline and see whether the cannula is in the correct position. Next slide. Arthralgia is a very common, particular, peculiar symptoms and it is rarely central. Or at any time in pregnancy, if she is symptomatic, no response to therapy, if there is evidence of acute blood loss, or if there is associated infection in pregnancy, severe grade infection amounting to septicemia. Next slide. So you have seen that hemoglobin is not the only criteria. If there is, I have told you that if there is associated infection, then also you give, basically what is your aim? Why do you want to give? What do you want to do with that patient? Supposing she is to be taken for surgery, then you will have lower threshold. आप जल्दी से उसे ट्रांसफ्यूज कर दोगे थोड़े भी हीमोग्लोबिन पे भी, भाई 7 से कम पे नहीं करोगे आप, 8 से कम पे भी कर दोगे, कम से कम 8-9 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए अगर उसका सिजेरियन होना है। तो खाली हीमोग्लोबिन देख के ही नहीं होता, पेशेंट की क्या क्या कंडीशन है। अगर एक 10 ग्राम की पेशेंट है और आपके सामने सामने उसे ब्लड लॉस होता ही चला जा रहा है, भले ही उसका 8 ग्राम हो जाए उसके बाद में, तो क्या ब्लड नहीं चढ़ाओगे उसे? उसका तो उसके लिए तो वो एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, 10 से वो 8 पे आ गई, तो आप कहोगे 8 पे तो ब्लड नहीं चढ़ाने को लिखा, बट उसने एक्यूट इवेंट फेस किया ना। तो इट इज नॉट दैट वी जस्ट सी हीमोग्लोबिन, यू हैव टू सी मेनी अदर थिंग्स। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो हम ये जज करें कि ये पेशेंट जो है, जो एनीमिक पेशेंट है, इसको अनीमिया हुआ क्यों। तो अनीमिया के कॉजेज हो सकते हैं एक्यूट या फिर क्रॉनिक अनीमिया। सी इन दोनों में एक बेसिक चीज जो अंतर कर रही है
कि कोई भी पेशेंट खराब दशा में आता है तो एक टेंडेंसी है बिना जाने कि उसकी क्या रीजन है, उसको एक आईवी लाइन और आईवी फ्लूइड चला दिया जाता है। तो ये बहुत ध्यान से सुने कि दोनों कंडीशंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल उल्टा है, एक्यूट एनीमिया और क्रॉनिक एनीमिया। जहां एक्यूट एनीमिया एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से हुआ है, वहां पर तुरंत मरीज आते ही उसकी आईवी लाइन एस्टेब्लिश करके उसे आईवी फ्लूइड चलाएं, क्योंकि उसका यकायक इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया, यकायक कम हो गया और बॉडी उसको मीट नहीं कर पा रही, तो ब्लड प्रेशर गिरा हुआ मिलेगा, फॉल हो जाएगा, 90-80 होगा। तो ऐसे पेशेंट में आप आई है तुरंत, आप जब भी कोई पेशेंट आएगा क्रिटिकल, उसमें कॉल फॉर हेल्प बहुत जरूरी है। कितने भी लोग हो, नर्स हो, कोई हो, वार्ड बॉय हो, आया कोई हाथ पड़ेगा, कोई बीपी ऐप लगाएगा, कोई कैनुला लगाएगा, कोई सैंपल लेगा, तो ये भी सभी लोगों को बुला लें अपने इर्द गिर्द की सीरियस मरीज आ गया। तो आप उसका साथ साथ हिस्ट्री ले रहे हैं, उसे एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट्स पूछ रहे हैं कि लॉस किससे हुआ, क्या। बहुत ज्यादा उस समय टाइम नहीं रहेगा कि हम ओरल आयरन खाई थी, साइड इफेक्ट, ये पूछने का टाइम नहीं है। हमने बस उससे ब्लड लॉस की हिस्ट्री पूछ ली ताकि हमें क्या लग रहा है। अब्रप्शन जिसमें ब्लड लॉस बाहर से नहीं दिखेगा और अंदर ही अंदर होगा, वो बहुत रेयर कंसील्ड वैरायटी है। या तो ब्लड लॉस दिखेगा और या फिर क्रॉनिक अनीमिया में ब्लड लॉस नहीं होगा। अगर टोटल के टोटल ब्लड अंदर इकट्ठा हो रहा है, जैसा कि अब्रप्शन कंसील्ड वैरायटी में होता है, उस केस में पेट एकदम टाइट होगा, वो एग्जामिनेशन में आपको सपोर्ट करेगा, आपको पता चलेगा, पार्ट्स फील नहीं होंगे, यूट्रस एकदम हार्ड और टेंस होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप गैस ना कर पाए, बेसिकली मोटा मोटा ब्लड लॉस की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। एक और बात, अगर एक मरीज आई है, आपको गैस करने में मुश्किल हो रहा है, आप उसके हाथ पैर अच्छे से देखें, अगर ब्लड जो है पैरों तक, उसकी तलवे के नीचे तक है, टांगों तक है, तो दैट मीन्स शी हैज ब्लड सिग्निफिकेंटली। ये एक मार्कर देखा जाता है कि ये ब्लड लॉस इतना सिग्निफिकेंट था कि उसका जमीन वमीन सब गंदी हो गई और उसके पैर तक गंदे हो गए, तो ये देखना जरूरी है। अब पेशेंट आ गई है, उसको आईवी लाइन लगाएं, लेकिन आईवी फ्लूइड तभी लगाएं जब वो आपको ये पता चल गया कि एक्यूट है। क्रॉनिक अनीमिया में अगर आप आईवी फ्लूइड लगाएंगे, वो ऑलरेडी सीएचएफ में है, सांस फूल रहा है उसका, तो आप अगर आईवी फ्लूइड पंपिंग कर दोगे, अगर सांस नहीं भी फैल रहा है क्रॉनिक अनीमिया में, आप जबरदस्त आईवी फ्लूइड डालोगे, ना होती भी पेशेंट फेलियर में चली जाएगी और फेलियर की पेशेंट और वर्सन हो जाएगी। तो आपको आईवी लाइन लगानी है, मगर आईवी फ्लूइड उसी को लगाना है जो एक्यूट ब्लड लॉस हुआ, जिसका यकायक ब्लड गायब हो गया। क्योंकि क्रॉनिक अनीमिया में क्या होता है ना कि ब्लड तो हार्ट पंप कर करके थक गया, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी नहीं रह गई, आप यकायक उसको फ्लूइड पंप कर दोगे, उसका थका हुआ हार्ट उसको आगे पुश नहीं कर पाएगा। ग्रेट ब्लड वेसल्स आयोटा में आगे पुश नहीं होगा तो पीछे की ओर बैक फ्लो मारेगा, पीछे की ओर बैक फ्लो मींस लंग। So now that you have taken her, put her IV cannula, you will, if you have a multi-para monitor, you may not have, but you might have, and you must have a pulse oximeter, see her oxygen saturation. If there is a facility for arterial blood gas analysis, get it done. There may not be, you cannot do anything, but BP apparatus pulse ले सकते हो, pulse oximeter से ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर तो अब सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप मंगा लीजिए, 2000 रुपए का। नहीं है तो पर्सनल खरीद लो, जैसे स्टेथो खरीदते हो और हैमर खरीदते हो, वैसे पल्स ऑक्सीमीटर भी खरीद लो, क्योंकि बहुत महंगी चीज नहीं है, आप बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है। और आपने सैंपल निकाला, सैंपल निकाल के आपको सबको पता है हीमोग्लोबिन असेस करेंगे और ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग कराएंगे जब आपको जान गए हैं अनीमिक पेशेंट है। अब हम एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन से नहीं करते, क्योंकि उनका मैनेजमेंट या तो डिलीवरी है, वेजाइनल डिलीवरी एब्रप्शन में, सिजेरियन भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में सिजेरियन, तो ये तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ, मरीज को ब्लड चढ़ा, ठीक हो गया। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक अनीमिया की। तो अब आप उसको ऑक्सीजन लगाएंगे बाय मास्क, क्योंकि उसका पल्स, आप पल्स ऑक्सीमीटर से देखें, सैचुरेशन भी कम होगा, ऑक्सीजन लगाने पे सैचुरेशन सही हो जाएगा, वो रीडिंग करेक्ट हो जाती है। पेशेंट को लिटाए नहीं, प्रॉप्ड अप पोजीशन, प्रॉप्ड अप मींस कंधे ऊंचे रहें, ठीक है। तो बेड जो होते हैं फाउलस बेड, उसमें वो लगा हुआ होता है, उससे वो कंधा ऊपर हो जाता है, तो प्रॉप्ड अप पोजीशन रखें। क्यों? क्योंकि पेशेंट लेबर पेन में है, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ 300-400 ml ब्लड जा रहा है उसके हार्ट पे डालने के लिए, तो अगर ये तो उसको अलग से बढ़ा ही रहा है। दूसरे, जब आप सीधे लेटते हैं तो वीनस रिटर्न इंपीड कर जाती है, तो ऑक्सीजन से
तो ऑक्सीजनेशन कैसे होगी ब्लड की, जब वापस जाएगा ही नहीं ब्लड। ग्रेविड यूट्रस अगर इंफीरियर वीना को लेटे हुई पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करेगा तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग में पहुंचेगा ही नहीं ऑक्सीजनेशन के लिए। तो क्या बॉडी बाकी हिस्सों को ऑक्सीजनेट ही नहीं होगा तो पहुंचाएगी क्या? तो सीधे लेटे रहने से ब्लड वीनस रिटर्न इज हैम्पर्ड। सो प्रॉप्ड अप पोजीशन में क्या हो रहा है कि यूट्रस आगे की ओर गिर जा रहा है, जिससे कि इंफीरियर वीना के बाद कंप्रेस नहीं हो रही। दूसरी बात है कि आयोटा भी कंप्रेस नहीं हो रही, इससे जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई है वो भी मेंटेन रह रही है और फीटल हार्ट डिसेलरेशन नहीं होंगे। तो आयोटा को न कंप्रेस करने से यूट्राइन आर्टरी जो है वो भी वेसल सर्कुलेशन ठीक रहेगा। हाँ, पेशेंट को कभी भी लिथोटमी पोजीशन में सेकंड स्टेज में भी मत लगाए, क्योंकि लिथोटमी जो है एग्जैजरेटेड वीनस रिटर्न कर देगी तो हार्ट उसको डील नहीं कर पाएगा। During the first stage of labor, maintain the partogram, nothing more to be done. You have arranged already blood, keeping the patient, nursing the patient with intermittent oxygen and in propped up position. While she is in the first stage of labor, during the first stage of labor, you are maintaining a partogram. Remember to start the IV antibiotics to prevent infections. She is at increased risk of infection. इन एनी पेशेंट लीव अलोन अनीमिया, किसी भी पेशेंट में रिपीटेड टीबी एग्जामिनेशन तो करना ही नहीं चाहिए। पेटेंट आईवी लाइन बट फ्लूइड्स आर अवॉइडेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डीकॉम्पनसेटेड पेशेंट का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पल्मोनरी एडिमा में है, उसकी चेस्ट में क्रैप्स है, उस पेशेंट को इवन अभी ये प्रेग्नेंट है पेशेंट, मतलब इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसे पेशेंट को भी आप डायूरेटिक दे सकते हैं। कहते हैं ना कि डायूरेटिक्स नहीं देने चाहिए प्रेगनेंसी में, अब तो उसकी डिलीवरी होने ही वाली है और ये कैटेगरी सी ड्रग है, मतलब माँ की जान बचाने के लिए जरूरी है, भले बच्चे को कुछ दिक्कत होगी। तो अगर किसी पेशेंट को सीएचएफ है तो माँ की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, आप ऐसे ड्रग को दोगे, फ्यूरेसेमाइड लाइसिक्स दोगे, क्योंकि आपके ऐसा करने से उसका पल्मोनरी एडिमा रिलीव होगा और उसकी जान बचेगी। तो अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्रैप्स दिख रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है उसको डायबिटिक दें। और ज़्यादा पल्मोनरी एडिमा होता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट नियर टू डेथ हो जाता है, जब उसके मुंह में फ्रॉदिंग पिंक कलर की झाग है, वो सब तो बिल्कुल टर्मिनल, आपका बचेगा नहीं बचेगा। तो वो सब कंडीशन है कि नहीं, आपको ओरल सक्शन पड़ेगी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रॉदिंग हो रही है, पिंक कलर का फ्रॉथ निकल रहा है, तो ये वाले पेशेंट तो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, सक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में देखिए, हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट को जो लोड मिल रहा है, अगर सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो गया तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो लोड है, जब तक फुल्ली डायलेट नहीं हुआ तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बार डायलेट हो गया है तो फर्दर जो हार्ट को एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, वो सेव हो सकती है हार्ट पे लोड, अगर हम उसकी रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर लें और बेबी को डिलीवर करा लें। मान लो कि मल्टीपेरा चौथा बच्चा है, वो अपने आप ही बच्चा धड़धड़ाता हुआ पेन के साथ में बाहर आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को फोर्स वेंटूज नहीं लगाना है, बस उसको जिसका पेरिनियम पे आके अटक गया या पेरिनियम से जस्ट शॉर्ट +2 +3 स्टेशन पे +4 स्टेशन पे अटक गया, ऐसे में वेंटूज या फोर्सेप लगा के हम उसके कार्डियक लोड को घटा सकते हैं। तो हमने कट शॉर्ट कर दी सेकेंड स्टेज। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, in this you give oxytocin 2 ampules, that is 10 units IM in the deltoid after the delivery of the baby. If you can give it at anterior shoulder, fine. If you are not able to give it after the delivery of the baby, and wait for 1 to 2 minutes for the placental separation. After 1 to 2 minutes आप controlled contraction देंगे और उसके साथ में प्लेसेंटा को डिलीवर कर देंगे by giving traction on the uterus, by giving controlled contraction on the cord and traction on the uterus above to prevent inversion. 2 हाथों से किया जाता है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। प्लेसेंटा निकलने के बाद में एक हाथ पे, आप दोनों हाथों पे हथेली पे प्लेसेंटा की कंप्लीटनेस चेक करें,
और उसके बाद में उसको ट्रे पे छोड़ते हुए उसके बाद यूट्रस की मसाज करें। एक बार देख लिया आपने कि प्लेसेंटा कंप्लीट है तो यूट्रस की मसाज करें। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जब बेबी डिलीवर हुआ था उस समय कॉर्ड को काटते समय आप ध्यान रखें कि सभी बच्चों में जो पैदा हो रहे हैं उनमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। और ये एक WHO का ने एक कंसेंसस जारी किया है। एक बाय नाउ every one of us should be practicing this and it has come, you know, WHO had approved of this, जो कि पता नहीं ये यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा रहा था। ये उसकी गाइडलाइन में बहुत सालों से है, 6-7 साल से, एंड नाउ इट इज बीइंग वाइडली फॉलोड that do delayed cord clamping after 2 minutes, around 1 to 2 minutes of the birth of the baby. Wait for some time, let the extra blood come, and then because this will transfer about 80 ml of blood to the fetus and help in prevention of anemia in the neonate, in the infant. See, and you are dealing with a case of anemic women. तो इसके बच्चे तो वैसे ही प्रोन है अनीमिया के इन द इन्फेंसी। तो यहाँ ये कैसे नहीं, मतलब ये तो सभी में होना है ताकि नियोनेटल पेरीनेटल मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम हो। तो अनीमिया इससे अछूता नहीं, अनीमिया में और इंडिकेटेड है। सिर्फ कुछ कंडीशंस को छोड़ के जहाँ अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, HIV इन्फेक्शन, बच्चा ही खराब निकला है उसको रिससिटेशन की जरूरत है, ऐसी सब कंडीशन में आप अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग लेंगे। बेयरिंग अ फ्यू कंडीशंस, ऑल अदर कंडीशंस यू डू डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तो ये बताना था मुझे। तो यहाँ बात हो रही थी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन मसाज। एक बार प्लेसेंटा निकल गई, कंप्लीटली निकल गई, आपने चेक कर लिया, अब यूट्रस को जेंटली मसाज कर ले। डू नॉट पुट योर हैंड रिपीटेडली इनसाइड द uterus to remove the clots or to remove the placenta. If you, at all you think that the placenta has not been removed, then while keeping one hand in the uterus only you can check. Don't put your hand again and again in the uterus. And just to check, you don't put your hand, you already have the placenta outside, you can check there if you have missed a part of the placenta inside the uterus. If it is complete, give uterine components of active management of third stage. Please remember oxytocin, controlled contraction and uterine massage. See, the preferable oxytocin in case of anemia, everybody knows, you can give oxytocin, you can give per rectal misoprostol. Oxytocin acts faster and per rectal misoprostol will take some more time than IM oxytocin. But why are we giving per rectal? Because per vaginally there may be bleeding and the misoprostol may not be absorbed through a vagina having blood. Moreover, वो उसके साथ बह के बाहर भी आ सकती है, इसलिए पर रेक्टल डाला जाता है। मेथर्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग टेटनिक यूटर, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करने से लार्ज वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है हार्ट के ऊपर, इसीलिए मेथर्जिन अनीमिया में नहीं दे जाते कि CHF ना हो जाए। And at all cost, EPH has to be prevented in every woman, whether anemic or not. These women are more so ever at greater risk even of at to the normal blood loss. जो normal है उसके लिए भी at risk है, इसलिए all the more reason that you are remain vigilant with all the drugs ready and not wasting time कि वो ऑक्सीटोसिन ढूंढने जा रही है। आपको पहले से पता है, just keep the things, सभी में रखना चाहिए। और ये तो वो मरीज है जो आपको मौका नहीं देगा दोबारा। शी में कोलैप्स की PPH से कोलैप्स कर जाएगी, आप ऑक्सीटोसिन का एम्प्यूली ढूंढते रह जाओगे। सो कीप द थिंग्स रेडी इन योर ट्रे। हाँ, अगर ये मरीज अब डिलीवरी के बाद में ऑटो ट्रांसफ्यूजन, जो प्लेसेंटा का ब्लड था, प्लेसेंटा निकल गई, यूट्रस पूरा वेस्कुलर था, यूट्रस श्रिंक कर गया, सारा उतने बड़े यूट्रस का जो ब्लड है वो जाने वाला है उसके हार्ट में, और ये यूट्रस तुरंत छोटा हो जाएगा। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ये लिखा हुआ नहीं है, सिस्टोलिक BP अगर 100 से नीचे है, ये क्राइटेरिया है, तो आप IV फ्यूरासेमाइड दे दें उसे। सिस्टोलिक BP शुड बी मोर देन 100, सॉरी, शुड बी मोर देन 100, इससे कम हो तो नहीं दे, लेकिन आप इससे सिस्टोलिक BP 100 तक है तब आप दे सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिलीवरी के समय PPH से कहीं सिस्टोलिक BP गिर गया आप और उसे लेसिक्स दे दोगे तो, क्योंकि उसके बॉडी में वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर वैसे ही घट रहा है क्योंकि PPH हो रहा है, तो आप वैसे उसको दे रहे हो लेसिक्स की भैया CHF ना, वैसे फ्लूइड निकल तो गया, आपने अनीमिया भी नहीं होने दिया, आपने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किया, इससे जो है 1/5 ब्लड लॉस हुआ।
1/5 ब्लड लॉस नॉर्मली 500 ml होता है, अगर एक्टिव मैनेजमेंट करो तो 125 ml के आसपास ब्लड लॉस हुआ, ठीक है ना। तो और ड्यूरेशन हो जाती है 15 मिनट्स, आधी हो जाती है थर्ड स्टेज की। वन हाफ हो 50% रिडक्शन इन ब्लड लॉस एंड 1/5 हो जाता है ब्लड लॉस। तो 100-150 ml अगर ब्लड लॉस हुआ तो इसके बाद में ये तो ब्लड लॉस ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारा वॉल्यूम 1 लीटर के आसपास जो है वो जाने वाला है जनरल सर्कुलेशन में, ये नहीं डील कर पाएगा हार्ट। तो आप देख लें, अगर बीपी भी 100 के ऊपर है तो दैट मीन्स कि वो ज्यादा शॉक वॉक में नहीं गई है ब्लड लॉस की वजह से, बीपी भी ज्यादा है और उसका कोई खास पीपीएच भी नहीं हुआ, तो इतना सारा वॉल्यूम जो ऑटो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसी के यूट्रस का ब्लड उसके हार्ट में जाएगा वापस रिटर्न होके, तो उसकी वजह से कार्डियक लोड को कम करने के लिए आप उसे फ्यूरासेमाइड देंगे। मतलब ये सिस्टोलिक बीपी 100 इस चीज का गॉज है कि आपकी गेस कर पाए कि उसको पीपीएच की वजह से पता चला वॉल्यूम लॉस हो रहा है और आपने और उसको लेसिक दे दिया और वॉल्यूम जो है यूरिन में चला गया, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और श्रिंक हो गया। तो अगर सिस्टोलिक 100 से ऊपर है तो आप उसको जरूर दे दें IV फ्यूरासेमाइड, जिससे कि कार्डियक ओवरलोड ड्यू टू ऑटो ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम यूट्राइन हाइपरवेस्कुलरिटी ऑफ द यूट्रस जो श्रिंक कर गया वो सारा ब्लड सर्कुलेशन में ना जाने पाए। हाँ, पोस्ट नेटल केयर। अब ऐसे वुमेन जो है इसके बच्चा खुद भी एट रिस्क ऑफ अनीमिया है, इसका बच्चा भी एट रिस्क ऑफ अनीमिया है, तो और इसके पास साथ में इसको पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन लाइक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लैक्टेशन फेलियर, सबइन्वोल्यूशन, इस पे नजर रखेंगे, पोस्टमार्टम विजिट्स बुलाएंगे। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के प्रोफिलैक्सिस के लिए आप उसको बताएंगे कि बिस्तर पे ही हाथ पैर चलाती रहा करे, अगर वो सीवियरली एनीमिक है, ज्यादा चिल फिर नहीं रही है, अगर ऑक्सीजन अभी आप उसको तो वो कम से कम हाथ पैर जरूर हिलाती रहे, अगर वो सक्षम है चलने में तो चल फिर भी सकती है। हैवी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी प्रेग्नेंट पोजिशन के लिए, चाहे वो उसको कोई बीमारी हो चाहे नहीं हो, वेट उठाने की वो सभी के लिए प्रोहिबिटेड है, इसके लिए भी है, लेकिन चलना फिरना अलाउड है, चलें तो अच्छा रहेगा। और ले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, ये एम्बोलिज्म के प्रोफिलैक्सिस हैं। इन्वोल्यूशन के लिए आप प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दें, डिलीवरी को एसेप्टिक तरीके से आप कराएं, और आयरन उसको जो है 6 महीने तक बीडी डोजेज में उसको देते रहें, जिससे कि उसके स्टोर्स जो हैं वो मेंटेन रहें। और she should be told about interval and spacing of the pregnancies in case she is keen on getting permanent, whatever options are available, she should be all offered all the options of family welfare, and all of these are suitable for her. Even IUCD आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप ये ना सोचे कि IUCD एनीमिक वुमेन में नहीं लगा सकते। IUCD बिल्कुल, अगर उसे PPH नहीं हो रहा, उसे कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, IUCD लगाने से जब उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी तो अल्टीमेटली, और वो एबॉर्शन के लिए नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली आप प्रिवेंट ही कर रहे हैं एनीमिया। और क्योंकि IUCD पोस्टमार्टम पेशेंट को लगाने में और फिर वो लैम्प मेथड फॉलो करे साथ में, तो एमिनोरिया जब हो जाएगा तो वैसे उसे IUCD एसोसिएटेड मिनोरेजिया भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसे लैक्टेशन एमिनोरिया होने वाला। तो IUCD इज नॉट कॉन्ट्राइंडी, इट इज क्वाइट गुड। और आजकल PP IUCD लगाया जा रहा है। मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉट ट्रेन इन पोस्ट delivery IUCD post placental IUCD insertion just after the delivery of placenta, very easy. So you are giving some prophylaxis to the, in case there is PPH then you don't give, but otherwise there is no PPH, she is a case of anemia, you can give. Thank you so much. Thank you.